सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। Indira Gandhi National Center of Arts. We extend a warm greeting to all of you and welcome you all to the day 1 of our Readers' Conclave. May I request all our esteemed guests to please join us at the dais. Our respected President, IGNCA and Chairman, Marty, Shri Ram Bahadur Rai, please let's give a round of applause to them. Our esteemed Chief Guest, Shri Amitabh Kant, India's G20 Sherpa. Our guest of honor, Shri Pankaj Jain, Controller General of Sulabh International, Shri Asif Azmi, the convener of MATI, and our authors, Mr. Prakash Singh, who is a retired IPS officer, and Mr. Ravi Kant, the former head of Tata Motors. We welcome you also. We will now commence our event with Deep Prajwalan, a traditional lamp lighting. It's our honor to invite all our esteemed guests on stage to light up the lamp of knowledge and wisdom. In our culture, the act of lighting a lamp holds resonance as it symbolizes the triumph of knowledge over ignorance. An ignition of thought and enlightenment. आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपात्वं देहि कल्याणं, देहि सर्वान् मनोरथान्, यावत् कर्म समाप्येत। I now request all our guests to please take their seats. Moving forward, may I request Dr. Shri Ram Bahadur Rai, the chairman of MATI and president of IGNCA, to welcome our chief guest, Shri Amitabh Kant, with a token of our gratitude. A token which takes the shape of a book to symbolize our event. A bouquet and a shawl. I now request Shri Asif Azmi, the convener of MATI. सर थोड़ा साथ सर आप ही आ जाएंगे सर आते सर I now request Shri Asif Azmi, the convener of MATI, to welcome our guest of honor, Shri Pankaj Jain, with a book, bouquet, and a shawl. The book presented to our guests is Mahdi Ke Mahayodha, written by Mr. Azmi himself. The book covers biographical sketches of 192 freedom fighters hailing from Purvanchal. We also welcome our dear authors with a bouquet and a token of our appreciation. Their books are a part of this conclave. Mr. Prakash Singh,
by Sri Rajiv Bhadoria and Mr. Ravi Kant by Dr. Rakesh Pandey. Let's have a round of applause for our guests. We will now begin our Readers' Conclave through a formal welcome and introductory speech by Sri Asif Azmi. Mr. Azmi is a well-known ad filmmaker. He has also published 11 books and has more than 100 articles to his credits. So, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, माटी के चेयरमैन, IGNCA के प्रेसिडेंट आदरणीय राम बहादुर राय जी, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय अमिताभ कांत जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय पंकज जैन जी, आदरणीय प्रकाश सिंह जी, आदरणीय रवि कांत जी, आदरणीय जयशंकर गुप्त जी और तमाम लोग, तमाम विभूतियां जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मेरी झोली में स्वागत के फूल भी हैं, शब्दों की मिठास भी है और भावनाओं के स्वर और संगीत भी। समय कम है, लेकिन फिर भी माटी के कन्वीनर की हैसियत से ये मेरा दायित्व भी है कि न केवल मैं आप लोगों का स्वागत करूं, बल्कि माटी की कारगुजारियों के बारे में भी बताऊं। आदरणीय प्रकाश सिंह जी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उन्हें याद होगा जब हमने माटी का पहला कार्यक्रम किया था, बरगद के पेड़ के नीचे, जो पुराना IGNCA, उस बरगद के पेड़ के नीचे हमने एक बीज बोया था माटी का। माटी एक पेड़ बन गया है इन 7 सालों में। इसके बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारी डालें, मजबूत तने भी हैं और कुछ नए नवेले भी। मजबूत तने जैसे पूर्वांचल महोत्सव माटी, कि जब हम राजघाट पे कार्यक्रम करते हैं तो 3000 लोगों पे हमें बंद करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। मजबूत तने जैसे हमने रिसर्च और पब्लिकेशन का काम किया, पूर्वांचल के 108 कवियों को जो लिविंग पोएट्स थे उन पे एक बुक कंपाइल की। पूर्वांचल के 192 स्वतंत्रता सेनानियों पर एक बुक बनाई। और एक तीसरी बुक हमारी तैयार हो रही है पूर्वांचल की कला और परंपराओं पर। एक और काम जो माटी ने किया पिछले दिनों सिद्धार्थ नगर में और इस साल हम मऊ और गाजीपुर में करने जा रहे हैं, वो रूरल हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करने का। पूर्वांचल की जो डॉक्टर्स हैं, हम उनको जमा कर रहे हैं। और जब हमें पता चला कि जाड़ों में हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, लकवा मार रहा है, फॉलिज का अटैक हो रहा उनके ऊपर, तो हम उस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल से, आर्मी हॉस्पिटल से, एम्स से, अपोलो से, वो बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनको हम अपॉइंटमेंट लेने के लिए 15 दिन का वेट करना पड़ता है, वो लोग उस कड़कड़ाती ठंड में गए, उन्होंने लोगों का इलाज किया। मेदांता ने अपनी सारी मशीनरी भेजी, क्योंकि वो 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, इन सब जगहों पे कोई एक भी ECG मशीन नहीं, कोई एक हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं। ऐसे दौर में लोग गए और हमने 2492 लोगों का हमने ट्रीटमेंट किया, जिसमें से 14 लोगों का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है जो क्रॉनिक केसेस है। माटी ने एक और काम शुरू किया है जो नई नवेली शाख है, कि हम पूर्वांचल के जितने भी स्कूल्स हैं, 10th के बाद के, वो इंटरमीडिएट हो, कॉलेजेस हो, फिर कॉलेजेस जितने हैं, यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं, उनकी हम मैपिंग कर रहे हैं।
और एक एजुकेशन ऑन जॉब पोर्टल पे हम जमा कर रहे हैं, ताकि हम बच्चों को गाइड कर सकें कि वो किन कोर्सेज में उन्हें जाना चाहिए, किन स्कूलों में जाना चाहिए। क्योंकि आजकल पूर्वांचल की बहुत से लोगों को दशा मालूम है कि वो स्कूल्स तो हैं, कॉलेजेस भी हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती। तो हम उनकी एक मैपिंग कर रहे हैं और उसी हिसाब से हम उनको गाइड कर रहे हैं। ये एक एजुकेशन एंड जॉब पोर्टल का काम हमारा शुरू हो गया है। माटी का एक और काम जो हम एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, माटी का एक सांस्कृतिक केंद्र बनाने का, जिसके लिए हमारी बहुत दिनों से यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से बात चल रही थी। अब वो तैयार हो गए हैं कि हमें वो कम से कम 2 एकड़ ज़मीन दे देंगे, जिस पे हम माटी का अपना एक सेंटर बनाएंगे। ऑब्वियसली वो ज़मीन खरीदनी है हमें और उसको बनाना है, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन कम से कम पूर्वांचल के कलाकारों का एक घर हो जाएगा। राजधानी से दूर बहुत है पूर्वांचल, इसलिए सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं, चीज़ें नहीं पहुंचती हैं। तो कम से कम राजधानी के अंदर हमारा पूर्वांचल की एक खिड़की तो खुल जाएगी। जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लोग उतरेंगे, एनआरआईज, बाहर के लोग जो दूर दूर तक फैले हुए हैं, तो उनके लिए एक प्रेरणा केंद्र बन के सामने आएगा। इस उम्मीद से हम लोग डेवलप कर रहे हैं और हम हर एक को, और न केवल ये कि वो पूर्वांचल के लिए काम करेगा, बल्कि पूर्वांचल के लिए वो एक कल्चरल एक्सचेंज का सेंटर बनेगा। उड़ीसा के लोग हमारे यहाँ आएंगे, हम उड़ीसा तक चल के जाएंगे। एक हमारे जो कार्यक्रम हैं उनको एक संस्थागत एक उनकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब और हम अगले 5 सालों तक जितने भी कार्यक्रम होंगे हम यही रट लगाएंगे। हमें हर तरह का सहयोग चाहिए, एक व्यक्ति से हमें आपकी शुभेच्छाएं भी चाहिए, हमें आपका पैसा भी चाहिए। हमें आप खुद कर सकें, आप किसी और से करवा सकें तो हमारी मदद कीजिए। ये एक बड़ा काम है जो माटी ने लिया है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे अब तक माटी कामयाब रही है अपने कार्यक्रमों को लेकर, अपने योजनाएं, जब पहला माटी था तो रात के 2 बजे तक हम लोग गन्ने का रस ढूंढ रहे थे। आरिफ मोहम्मद खान साहब का 2:30 बजे फ़ोन आया कि गन्ने का रस आपका इंतज़ाम हो गया है। हमने वहाँ से माटी को शुरू किया था। आज कम से कम माटी को इस लायक है कि माटी के पास अपना भी कुछ फंड है और माटी अपने कार्यक्रमों के लिए लोगों से बार बार नहीं मांगती है। और माटी जो कला केंद्र माटी का बनेगा, उसका एक उद्देश्य ये भी है कि हम एक सस्टेनेबल बेसिस पे उस सेंटर को चलाएं। उसमें अकोमोडेशन भी हो, कॉन्फ्रेंस रूम भी हो, बैंक्वेट भी हो, बाकी फैसिलिटीज़ भी हो, ताकि हमें अपने कार्यक्रमों के लिए बार बार लोगों से मांगना ना पड़े, लोगों के पास जाना ना पड़े। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, माननीय अमिताभ कांत जी, माटी के साथ उनका बहुत सहयोग रहता है, लेकिन हम कितनी बार उनके पास जाएं। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग कम से कम एक सेंटर बन जाए तो हम माटी को आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह से मैं आप लोगों के साथ का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये थोड़ी सी बातें थी जो बतानी ज़रूरी थी। और उसी तरह का माटी का एक कार्यक्रम माटी ने सोचा कि हम डॉक्टर्स को जमा कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल्स को जमा कर रहे हैं, तो हम एकेडमिक्स को भी जमा करें। और पूर्वांचल के जो लोग हैं, एक कहकशा है, एक आकाश गंगा है, एक स्वर धारा है जो चली आ रही है पूर्वांचल में। कौन कौन सी विभूतियाँ नहीं रही पूर्वांचल के अंदर, जहाँ रामायण लिखी गई हो, जहाँ बड़ी मुंशी प्रेमचंद हो, जहाँ राहुल सांकृत्यायन हो, जहाँ तुलसीदास हो, कबीर हो, वो और आज भी पूर्वांचल के लेखक, पूर्वांचल के कलमकार, पूर्वांचल के राइटर्स पूरी दुनिया को एनरिच कर रहे हैं। तो हमने एक छोटा सा पहली कोशिश है, ये हो सकता है पहली बार कोशिश करते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उस तरह से परिपक्वता के साथ कर पाएँ, लेकिन फिर भी हमने अलग अलग जॉनर्स की 10 किताबें जमा की। और जिन लोगों को जमा किया वो अपनी जगह वो कद्दावर शख्सियात हैं और वो पूर्वांचल से निकल के आई हैं, वो पूरी दुनिया को सैराब कर रही हैं। तो एक बार ज़ोरदार तालियां उन तमाम लेखकों के लिए। और ये आज एक पहला स्टेप है। हर साल हम इसको बड़े पैमाने पर पूर्वांचल महोत्सव की तरह रीडर्स कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, लेखकों को उनके रीडर्स के साथ जोड़ते रहेंगे। हम चाहते हैं कि पढ़ना लिखना, और आज के दौर में जब इंस्टेंट
2 मिनट्स नूडल और 10 सेकेंड्स बाइट का ज़माना है, तो और किताबों से रिश्ता जो कमज़ोर हो रहा है, उस रिश्ते को मजबूत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Shukriya, Asif Azmi Sahab. I would now like to welcome our guest of honor, Shri Pankaj Jain, a retired IAS officer and presently the Controller General of Sulabh International Social Service Organization and Sulabh International Museum of Toilets. Shri Pankaj Jain is also a former Secretary to Government of India, Ministry of Drinking Water and Sanitation. Shri Amitabh Kant, Shri Ram Bahadur Rai, Shri Sachidanand Joshi, Shri Asif Kazmi, Professor Ramesh C. Gaur, and friends here. A very good afternoon to everybody. And I'm very happy to be here today in this set of book launches. I think there are 8 to 12 book launches. I was just talking to Prakash Singh Saab before the start of this function, and we were sharing that reading of books is slowly going down. It is so unfortunate. In his time and even in our times, we would go to libraries, take books, and actually wait for certain subject books or certain authors, certain titles to be returned so that we could get hold of it and read it. Now, somehow that time is going off, and people are, becoming addicted to mobiles, WhatsApp University, and Kindle and movies, especially OTTs. They're taking over the interest of most of the youngsters, which is actually a real pity. The romance, what the books can bring out is somehow fading away, and it's taking, as somebody said, is being replaced by quickies, which we have to kind of neutralize and think about. And as you know, the books have always been a source of joy. All of us, at least my generation and earlier generations, would love to have a book rack at the back behind our office or table or our residence office, and look at the smart array of authors and books. Even though I admit that most of us in our life would never get the opportunity to read them cover to cover. But we would be happy to own them. And I also buy books, and I'm unable to go through all the books cover to cover. Although it's my dream, it's in my bucket list that I should read more books and actually try to read them cover to cover. But the least I can enjoy is I read some chapters of the books, and then I buy books, I read some chapters, and then stack them away, thinking that I'll get more time to read them fully, which I don't get because I'm still working, and we are occupied by so many things, and we are distracted by movies. The easier escapes, I would say, the Netflix, the Amazon Prime, and other OTTs. Now, just to mention that authors write books either because they want to capture contemporary history, is one aspect, or through or capture it either by first-hand seeing it happenings, or by interactions with people, so that they get the flavor as what is happening, and that gets recorded in history as history over the time, and people read about it. So that you can say is the first hand, the primary evidence. But a lot of authors write historical books based on secondary evidence. They analyze the historical happenings by reading about them, and then analyzing, after reading a number of authors, they analyze what was done, what were the meanings of it, how it happened, why it happened, or why certain things could have been avoided. But both these type of books are very interesting and gripping, the ones which are contemporarily written and read later, and those which are an analysis of history. Because they all present in some way or the other,
whether the romance of history or the horrors of history, both are presented. Now, equally enjoyable are autobiographies and biographies, some of which are going to be presented here. Because sometimes they, of course, tell about the readers or writers' actual what he has achieved in life. For example, on management, So if he's actually come through his own formulae of good management, he writes and familiarizes others with it. And sometimes the authors like to cover juicy incidents of their life. So that itself is very interesting and acceptable, which otherwise would not come into public light. For example, if I'm posted in Jammu and Kashmir, I have seen tidbits of what has happened there, which never gets recorded in history. Small incidents may not. I mean, for example, it took 30 years for a movie like Kashmir Files to come out. And in 1990, I've seen everything of those things, each and everything. But it never comes out of the light of day unless somebody writes about it or makes a movie about it. So that in way, recording by authors becomes very important. So books are that way very important. And in some cases, you have dictators who write autobiographies like Adolf Hitler. He wrote Mein Kampf. You may say he's a megalomaniac, but from his book, you understand what is his thinking. And that itself is a lesson in history. So it's important to read it, which cannot be captured by a movie or by anybody telling a short story to another person. So that is another value of reading a book. And sometimes, the autobiography serves as a catharsis. A man wants to let out steam as to what he did or did not do. He wants to explain his actions or his failures or his successes. So that is another very interesting aspect of books, which is easily not captured by a movie. Now, social changes. The books are a very powerful agent of a social change being captured. Now, in Sulabh, we have written a large number of books, on social aspects. Like, our founder, he turned the pages of history by liberating the manual scavengers. We have documented all that in a large number of books. We've even written a book on menstrual hygiene, how menstrual hygiene is in India, which I presented to Ram Bahadur Raiji in the afternoon. And it's in one book which we have documented with actual survey, practical survey. I don't think even in the government you have such a book available. You might have a few. We covered 14 aspirational districts, and each one is in detailed documentation. So these things can lead to social changes. In fact, when we have liberated the scavengers, we are educating them. We are giving them alternate employment through vocational training. And that is also covered by our books. So people read about it, they understand this social change. Of course, we have other types of books, which are education books on science, technology, medicine, law. But these are education type of books. And on the other hand, we have thrillers, You have fiction thrillers, you have romance novels, you have science fiction. These are different types of books, all of which are very enjoyable. And I'd like to say that book launches like this are extremely enjoyable. They're not only enjoyable for the author who's written them, because he's projecting what he thinks, his own life also maybe, and what should be, and things like that. It showcases new books to the public before they come out, and by word of mouth it spreads. Then it goes into the libraries and into Kindle or Amazon for sale. I wouldn't know many people whose book launches are today, but I'm very sure each one of them are very interesting. I know a few, but I have not read any of these books. But they're very, very impressive, what I could make out from the cover. Here almost at the end, I would like to confess I'm not a very avid reader, although I know the advantages of reading. It's, I have bought books, as I mentioned, I kept them. And sometimes I go through the pages, covers. It's only because we all are occupied in so many things. And I do, of course, read a little bit of history and books on
technical matters, management, legal issues, but mostly for either my office work or for giving a talk or something, or for debates. But that's not, or sometimes I read thrillers. And in fact, nothing like a thriller when you are sick. I'll give you an example. When I was 13 years old, I fell off a horse. My father was in the IPS, just like Prakash Singh Saab in UP Cadre, so we used to do horse riding. And once, when I was only 13, the horse threw me off and actually fell on me, and I was very badly injured. I couldn't get up from bed for 40 days. And do you know how I cut my time? I had friends from US who were also doing horse riding. So they used to give me books and comics every day. And that's how I cut these 40 days, reading these books. That's the real value of books. So it's man's best friend in a way. So in the end, I would like to congratulate the authors whose books are being released. And I wish them very high readership, because every author wants his books to be read and read widely and be recognized. Thank you very much. Thank you so much for your time, sir. It is with my sincerest gratitude that I now welcome our chief guest, Shri Amitabh Kant. Shri Amitabh Kant is a retired IAS officer from Kerala culture who is presently India's G20 Sherpa. He has previously served as the Chief Executive Officer of Niti Aayog. Mr. Kant is known as the brand man of India. Incredible India and Incredible Kerala are two brands that he successfully launched during his service, while India's G20 presidency was itself a brand that attracted the world's attention. Mr. Kant, the author of books Branding India, An Incredible Story, Incredible India 2.0, Made in India, 75 Years of Business and Enterprise, and The Elephant Moves, India's New Place in the World, co-authored with Amit Kapoor. He has written over 500 articles in leading Indian and foreign publications. In your applause, let's welcome Mr. Amitabh Kant. आदरणीय राम बहादुर राय जी, जो न केवल IGNCA के चेयरमैन हैं, बल्कि पूर्वांचल के हर एक कार्यक्रम में ये हम सब लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं। माननीय श्री प्रकाश सिंह जी, जो कि हमारे ऑल इंडिया सर्विस IPS के बहुत ही माने जाने और बहुत ही डायनेमिक ऑफिसर हैं, और जिन्होंने कई किताबें लिखी हुई हैं अपने एक्सपीरियंसेस पे। आदरणीय श्री पंकज जैन जी, जो मेरे सीनियर रहे हैं और अभी सुलभ इंटरनेशनल के में सीनियर सेक्रेटरी जनरल हैं। मेरे बड़े भाई श्री रविकांत जी, जो कि टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और जिन्होंने अभी एक बहुत ही सक्सेसफुल किताब लीडिंग फ्रॉम द बैक लिखी है, जिसके कई बहुत तारीफ हुई है दुनिया भर में। और हमारे प्रिय श्री आसिफ आज़मी जी, मुझे यहाँ उपस्थित होकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं तो करीब 28-30 वर्ष मैंने दिल्ली से मैं केरला चला गया था, तो मैं केरला में मैंने नौकरी की अपनी। और जब मैं वापस दिल्ली आया, उसके बाद कई प्रोग्रामों में मुझे आसिफ आज़मी जी और आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी ने मुझे माटी के कई कार्यक्रम में बुलाया, और मैं जब भी मुझे ये निर्देश देते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा अनुभव हुआ है कि जैसे कि इनके कार्यक्रम, खासकर पूर्वांचल महोत्सव में जब मैं जाता हूँ, तो लगता है कि जैसे हम लोग अपने गांव में वापस चले गए हैं और अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो
खासकर 30 वर्ष केरला में व्यतीत करने के बाद ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम सब लोगों को एक पूर्वांचल की मिट्टी से जुड़ने का। तो मैं राम बहादुर राय जी की और आसिफ आजमी जी की को खास धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस अवसर पर पूर्वांचल के कुछ महान लेखकों को, जैसे मुंशी प्रेमचंद हों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राहुल संकृत्यान, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राही मसून रज़ा, केदारनाथ सिंह से लेकर आज के राम बहादुर राय जी, विश्वनाथ त्रिपाठी, विकास स्वरूप हो जिनकी अभी नई किताब 2 दिन पहले रिलीज़ हुई, और प्रकाश सिंह, रविकांत जी, और वे लोग जिनकी किताबें आज हम इस सम्मेलन का केंद्र बिंदु हैं, और बहुत से ऐसे चमत्कारी लोगों को नमन करना चाहूँगा। चमत्कारी इसलिए कि इनके लिखे साहित्य ने हमारे चरित्र और सोच में बहुत ज़ोरों का प्रभाव डाला है, और जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज पाठक समागम के अवसर पर मैं सभी पाठकों को और हमारे पूर्वांचल के सभी लेखकों का, जिनकी किताबें आज तक आज इस पाठक समागम का केंद्र बिंदु हैं, सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा। हम सब एक साथ इन पुस्तकों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। पुस्तकों का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक होता है। यह न केवल हमें ज्ञान और जानकारी देती हैं, वे हमें नई दुनियाओं में ले जाती हैं और हमें नई सोचने की प्रेरणा देती हैं। जब हम किसी पुस्तक के पन्नों पे खो जाते हैं तो हमें एक नई दुनिया का आवेश में जाते हैं, और अनजाने में भी हमें बहुत कुछ सीखने को एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। ये न केवल हमारी व्यक्तिगत विकास में सहायक है, बल्कि समाज में भी सही मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। पुस्तकें ज्ञान के द्वार खोलती हैं। वे अंतर्दृष्टि, जानकारी और कल्पना से भरी खजाने की तरह हैं। चाहे आप एक नए कौशल सीखना चाहते हों, या एक अलग संस्कृति का पता लगाना चाहते हों, या बस एक मनोरम कहानी में खो जाना चाहते हों, किताबें ये सब प्रदान करती हैं। किताबों का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वे हमारे क्षितिज को व्यापक बनाते हैं, हमारे शब्दावली को बढ़ाती हैं और हमारे रचनात्मक को प्रोत्साहित करते हैं। पढ़ना न केवल हमें क्षितिज करते हैं, बल्कि विविध तरह से हमारी भूमिका निभाने की अनुमति देकर सहानुभूति का पोषण भी करती हैं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो किताबें हैं, ये आज का जो पुस्तक समागम है, ये अगर हम देखते हैं तो जैसे कहा गया है कि हम इसकी वजह से ना केवल वी आर सेलिब्रेटिंग द जॉय ऑफ रीडिंग एंड प्रमोटिंग अ कल्चर दैट हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स, एंड reading is really the key to unlocking knowledge. It is the key to unlocking imagination and critical thinking. And it opens the doors to new worlds. It broadens our perspectives and enriches our understanding of ourselves. आज की जो दुनिया है उसमें हम देखते हैं कि ये डिजिटल एज है, और पंकज जैन जी ने जैसे कहा कि हम कई बार रीडिंग के बदले डिजिटल दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, हम लैपटॉप की दुनिया में खो जाते हैं, और हमें ये इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो जाता है, और हम लोग बहुत मुश्किल से एक किताब की दुनिया में अपने आप को इमर्स कर पाते हैं। और इसीलिए आवश्यक है कि एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट किया जाए कि हम एक रीडिंग कल्चर को प्रमोट करें, और आजकल के बच्चों को हम किताबों का जो मैजिक
होता है उसको उनको डिस्कवर करना आवश्यक है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में रायपुर डिस्ट्रिक्ट गया था और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कि अब मंत्री बन गए हैं, उन्होंने एक वहाँ लाइब्रेरी शुरू की। एक पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई थी बीच में डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने एक लाइब्रेरी शुरू की और जब मैं वहाँ गया तो वो पूरी भरी हुई थी और बच्चों की लाइनें लगी हुई थी इस लाइब्रेरी में जाकर काम करने की, पढ़ने की, और बहुत बढ़िया किताबें वहाँ थी। तो मुझे लगा, तो छत्तीस गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया कि हर जिले में जाकर वो उसी तरह की लाइब्रेरी खोलेंगे जिससे कि हर बच्चे को एक्सेस हो। और मेरे विचार से न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में और हर पंचायत में ये ले जाना, ये प्रोग्राम आगे ले जाना बहुत आवश्यक है। तो वी मस्ट क्रिएट स्पेसेस दैट फॉस्टर अ लव फॉर रीडिंग, लाइब्रेरीज, बुक क्लब्स, लिटरेरी फेस्टिवल्स, और ये लिटरेरी फेस्टिवल्स बहुत आवश्यक है। एंड वी ऑल्सो शुड सपोर्ट ऑथर्स एंड पब्लिशर्स who produce great quality content, and that will sharpen the mind in our society। क्योंकि हमारा जो माइंड हो गया है वो ट्विटर की एज में 60 वर्ड का माइंड हो गया है। 60 वर्ड के आगे हमने सोचना बंद कर दिया है और 1 मिनट से आगे सोचना बंद कर दिया है। जबकि अगर हमें दुनिया में बदलाव लाना है, अगर हमारी इंडिया को दुनिया में बदलाव लाना है, हमें अपने ट्रेडिशनल कल्चर, सिविलाइजेशन को आगे ले जाना है, तो हमें अपनी संस्कृति में इमर्स होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हमें अपनी सोसाइटी का माइंड को शेप करना आवश्यक है। तो हमें सबको मिलके, जैसे आज राम बहादुर राय साहब ने और आसिफ आज़मी साहब ने आज ये पुस्तक का बहुत बड़ा एक समारोह किया है, उसी तरह हमें रीडिंग कल्चर को प्रमोट करना आवश्यक है। और ये रीडिंग कल्चर से ही हम देश को आगे ले जा पाएंगे। और मेरे विचार से इसी तरह, क्योंकि ये भी समझना आवश्यक है कि जो पुस्तकों का संदेश सरल होता है, ज्ञान और समृद्धि का संदेश होता है, यह आपकी सोच को प्रफुल्लित करने और आपके अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में बहुत मदद करता है। और हमें इस मानसिक और आध्यात्मिक संवाद में बने रहना चाहिए और अपने पढ़ने के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। इसीलिए मेरा जो भी एक्सपीरियंसेस हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, या हम टूरिज्म में इनक्रेडिबल इंडिया हो, इन सब एक्सपीरियंसेस पर मैं लगातार किताबें लिखता चला गया। हमें इस आज मेरे विचार से लेखकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आप सब लोग जो आज आमंत्रित किए गए हैं, आप वे व्यक्तित्व होते हैं जिन्होंने हमें विचार करने और सोचने की प्रेरणा दी है। आपके शब्द हमें नई दिशाएं दिखाते हैं और आपके लेख हमारे दिलों को छू जाते हैं। आपके शब्द और विचार हमारी सोच को उत्तेजित करते हैं और आपकी कहानियां हमें नई जगहों ले जाती हैं। आपकी लेखनी और ऐसी शक्ति है जो समाज में परिवर्तन ला सकती है और हमें सही और नई दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। आपका योगदान हमारे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके विचार हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं और आपकी पुस्तकें हमें नई दिशाओं की ओर अग्रसर करती हैं। आज मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि हम सभी अपनी रचनात्मकता के माध्यम से समाज के उत्थान में और योगदान दें। हमारी पुस्तकें हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमें इस सदा सम्मानित रखना चाहिए। लगातार सम्मानित, हमें इसे सदा सम्मानित रखना चाहिए। चाहे आपका लेखन जिस विषय पर भी हो, आपकी पुस्तकें हमारे जीवन के अद्वितीय रंग भरती हैं और ये हमेशा मुझे लगता है कि हमेशा अद्वितीय रंग भरती रहनी चाहिए। और यही आपसे मेरा निवेदन है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा
कि लगातार किताबों ने जनरेशन्स को इंस्पायर किया है। लगातार आप अंग्रेजी में भी देखिएगा, some of the greatest writers have given their contribution. आप विलियम शेक्सपियर को देखिएगा तो उन्होंने बड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए, रिच लैंग्वेज की, उन्होंने ह्यूमन माइंड का एक्सप्लोरेशन किया। आप चार्ल्स डिकेंस को देखिएगा 1812 में उनकी जो नॉवल थी ऑलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड, उन्होंने सोशल इनजस्टिसेस जो थी इंग्लिश सोसाइटीज में और उनको वो आगे लाए। और जेन ऑस्टिन जो थी, उन्होंने बहुत ही विटी नॉवेल्स लिखी, प्राइड और प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, पर उनके कैरेक्टर हमेशा फीमेल प्रोटोगनिस्ट थे और जेंडर, क्लास और सोसाइटी पर इम्पैक्ट किया। आप रशिया में देखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय हैं जिनकी वॉर एंड पीस और एना कैरेनिना, इन्होंने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर किया और रशियन सोसाइटी में जो ह्यूमन कंडीशंस थी उसके बारे में बताया। और इसी तरह लगातार आप अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर्स को देखिएगा तो वो उन्होंने ऐसी नॉवेल्स लिखी, उन्होंने फैंटेसी पर, पॉलिटिकल कमेंट्री पर, और जॉर्ज ऑरवेल को बाद में देखिएगा तो एनिमल फार्म हो, 1984 हो, ये सारी नॉवेल ऐसी थी जो कि पॉलिटिकल कमेंट्री थी अपने समय की। और ये सब राइटर्स ने बहुत जोरों का एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है लिटरेचर पर। और अगर आप भारत को ही देखते हैं, भारत में आप आर के नारायण को देखते हैं जिनकी मालगुडी डेज हो, हमारे सबसे सेलिब्रेटेड ऑथर्स में माने जाते हैं, या मुल्कराज आनंद को देखते हैं जिन्होंने पुअरर कास्ट के बारे को डिपिक्ट किया। और आप ये हाल में रस्किन बॉन्ड को देखते हैं जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत किताबें लिखी और जिनकी सारी किताबें क्लासिक्स मानी जाती हैं। और मनोहर मलगांवकर को देखते हैं, तो ये पाइनियर थे मिस्ट्री और थ्रिलर जेनर के, और अपने समय से करीब कई दशक आगे थे। और अभी हाल में अरविंद अधिका जिनकी वाइट टाइगर जिसने मैन ब्रुकर प्राइज जीता, या किरण देसाई हो जिनकी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस मानी गई बहुत बड़ी किताब, या विक्रम सेठ हो जिनकी किताब सूटेबल बॉय दुनिया की सबसे बढ़िया नॉवेल्स में मानी जाती है, और अमिताभ घोष हो या पूर्वांचल के विकास स्वरूप हो जिनकी स्लम क्वेश्चन एंड आंसर जो कि स्लम डॉग मिलियनर में बनी, और अभी उनकी नई किताब रिलीज हुई परसों जिसमें मैं था, द गर्ल विद द 7 लाइज, और जो मेरे विचार से एक और बहुत ही शानदार किताब है। तो किताबों ने लोगों को हमेशा इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, इमेजिन करवाया है और बदलाव लाया है। और किताबों में वो शक्ति है जो कि सोसाइटी में बदलाव ला सकती है। तो इसीलिए मेरा विचार है कि जो राम बहादुर राय साहब ने और जो आसिफ भाई ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है और बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं अपने वाक्यों पर विराम लाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. We greatly appreciate your support to the cause of Marty and your words of wisdom today. अब हम इस सेशन के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद आज बैक टू बैक 4 बड़े लेखकों और उनकी किताबों से मुलाकात होगी और कल ऐसे ही 6 और नामी किताबों की चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले सबसे अहम आज के अध्यक्षीय संबोधन। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करने जा रही हूँ माननीय श्री राम बहादुर जी से, जो IGNCA के प्रेसिडेंट हैं और माटी के चेयरमैन भी। I would now like to welcome our president, Shri Ram Bahadur Rai, on the podium to deliver his presidential remarks. हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अमिताभ कांत जी, आज मंच पर डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को भी रहना था, लेकिन कला केंद्र के जिम्मे एक नया काम आया है। राष्ट्रपति भवन में जब से वो बना है तब से पता नहीं कैसी कैसी तस्वीरें वहाँ लगी हुई हैं।
इसकी तरफ कभी प्रधानमंत्री जी का ध्यान गया होगा, तो अब पूरी राष्ट्रपति भवन की साज सज्जा का नया काम इंदिरा गांधी कला केंद्र के पास आया है और उसी की पीएमओ में मीटिंग है, इसलिए डॉक्टर सचिदानंद जोशी यहाँ नहीं आ सके। मेरा ख्याल है कि आसिफ जी को उन्होंने बताया भी होगा। पंकज जैन जी, आसिफ आजमी जी, प्रोफेसर रमेश गौड़ को भी रहना था लेकिन नहीं है। ये अंकिता है मेरा ख्याल है। अच्छा, ये जिन नामों को मैंने अभी आदरपूर्वक लिया, उनके अलावा 2 लोग और मंच पर हैं। आदरणीय रविकांत जी हैं सबसे अंत में उधर, और उनके पास में आदरणीय प्रकाश सिंह जी हैं। इन दोनों की मंच पर उपस्थिति हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पाठक समागम को माटी ने कला केंद्र और अन्य संस्थाओं के सहयोग से यहाँ रखा है, और मैं समझता हूँ कि माटी का ये पहला पाठक समागम है। ये एक नई पहल है जिसके बारे में आसिफ आजमी जी ने अपने प्रस्ताविक भाषण में संकेत भी किया था। माटी की जो बौद्धिक शक्ति है अपार है, और इसके बारे में अमिताभ कांत जी ने हम लोगों को और ज़्यादा उत्साहित किया जब तमाम लेखकों की, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हों या दुनिया भर के बड़े लेखक हों, उनका उल्लेख करके इन्होंने मुझे समझाया और हमें समझाया कि दरअसल माटी तो एक सिंबल है, और माटी की जो बौद्धिक क्षमता है वह सचमुच उसका कोई था नहीं पाया जा सकता, वो अपार है। और इसे उन पुस्तकों और महत्वपूर्ण लेखकों से समझा जा सकता है जिन पर आज भी और कल भी चर्चा होगी। उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद रविकांत जी की पुस्तक पर चर्चा होनी है, और हमको उनकी पुस्तक के बारे में जानने, समझने और पुस्तक के सार निचोड़ के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ये पुस्तक है जो मेरा ख्याल पिछले साल आई थी, लीडिंग फ्रॉम द बैक टू अचीव द इम्पॉसिबल, और अब इसकी हिंदी भी आ गई है, रविकांत जी ने अभी हमको दिया। तो मैंने इसकी जो अंग्रेजी पुस्तक है वो मुझे पिछले साल मिली थी, और मैंने उसको पढ़ा समय समय पर। ये मेरी सबसे प्रिय पुस्तक बन गई है इन दिनों, और इसलिए बन गई है क्योंकि इस पुस्तक को अगर आप हाथ में लेंगे तो सबसे पहले रतन टाटा इस पुस्तक की सराहना करते हैं, और उन्होंने लिखा है कि ये पुस्तक, नहीं मैं खुद ये कहना चाहता हूँ कि 150 पन्ने की ये पुस्तक है। तो ये पुस्तक ऐसी है कि कोई मेट्रो में जा रहा है, गाड़ी में बैठा हुआ है, तो उसके हाथ में कोई वजन न होते हुए भी भारी वजनी चीज पुस्तक के रूप में उसके हाथ में रहेगी, और वो जो वजन होगा वो बोझ का नहीं होगा, ज्ञान का होगा। इस पुस्तक को मैं कहूँगा कि ये जो है गागर में सागर है। अपने क्षेत्र के बड़े दिग्गज, ये रविकांत जी मुख्य लेखक हैं, 2 सहयोगी लेखक हैं इनके, और ये तीनों अपने क्षेत्र के बड़े दिग्गज हैं। इनकी, जैसा अमिताभ कांत जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं भी उनकी बात को दोहराना चाहता हूँ कि इस पुस्तक की सचमुच दुनिया में सराहना हुई है, और इस नाते माटी को दो बातों का गौरव होना चाहिए। नंबर 1 कि रविकांत जी बलिया के हैं,
और माटी की सीमा है बलिया, माटी की शुरुआत लखनऊ है। तो लखनऊ और बलिया के बीच में एक सीमा छोर पर जो एक व्यक्ति है जिसका नाम रविकांत है, उसकी पुस्तक का पूरी दुनिया में अगर सराहना होती है तो हमको अपनी सराहना माननी चाहिए। और ये मानना चाहिए कि पूर्वांचल के लेखकों के, पूर्वांचल के, मैं राजनीतिक लोगों की बात नहीं करूँगा, पूर्वांचल के साहित्यकारों की, पूर्वांचल के एक्टिविस्टों की एक हीन ग्रंथि भी रहती है कि हमने आज़ादी की बड़ी लड़ाई लड़ी लेकिन हम पिछड़े हुए हैं। अब रविकांत जी की पुस्तक देखने के बाद आपको कभी नहीं लगेगा कि हम पिछड़े हुए हैं, क्योंकि जिस पुस्तक की सराहना रतन टाटा जैसे व्यक्ति करते हैं, और रतन टाटा ने लिखा है कि नेतृत्व के विभिन्न स्वरूपों पर बहुत पुस्तकें हैं, और उन्होंने ठीक लिखा है। मैं भी ये पाता हूँ कि नेतृत्व के, यानी लीडरशिप के बारे में तमाम पुस्तकें हैं। वो रतन टाटा जी कहते हैं इस पुस्तक के बारे में, लेकिन इस विषय पर यह पहली पुस्तक है। और सचमुच मैं इसको दूसरे तरह से कहना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक है लीडिंग फ्रॉम द बैक टू अचीव द इम्पॉसिबल, इस पुस्तक की सराहना में तमाम दुनिया के कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति इस क्षेत्र का नहीं है जिसने इसकी सराहना न की हो इस पुस्तक की। और ये पुस्तक भी नेतृत्व विकास पर ही है, लेकिन सबसे अलग है, हटकर है, और यही इसकी विशेषता है। कैसे पृष्ठभूमि में रहकर उद्यमियों और प्रबंधकों में नेतृत्व की असंभव क्षमता पैदा की जा सकती है, इसके सूत्र इस पुस्तक में तमाम उदाहरणों से रखे गए हैं। और मैं ये कहूँगा कि एक सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। रविकांत जी की पुस्तक पढ़ते हुए, हालांकि वो मैनेजमेंट और लीडरशिप के बारे में है, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यशैली कोई देखे तो वो भी कुछ हद तक रविकांत जी के दिए हुए उदाहरणों से मिलती है कि बैकग्राउंड में रह करके और आप समाज के काम में, समाज निर्माण के काम में, नए लोगों को आगे करने के काम में सक्रिय रहते हैं। उसी तरह से आज जिस पर चर्चा होगी दूसरी पुस्तक है पत्रकार जयशंकर गुप्त जी की, जो सामने बैठे हैं। इनकी पुस्तक का शीर्षक लुभावना है। मैं लुभावना इसलिए कहता हूँ कि उसमें कुछ कविता का भी अंश है। दो डग देखा जग, इसमें सब कुछ आ जाता है। यह आधुनिक कविता की पहली पंक्ति भी हो सकती है। और तीसरी पुस्तक है आदरणीय प्रकाश सिंह जी की अनफॉरगॉटन चैप्टर्स मेमोयर्स ऑफ ए टॉप कॉप। मैं इनसे पूछ भी रहा था कि आपने आत्मकथा क्यों नहीं लिखी, तो इन्होंने कहा कि आत्मकथा कौन पढ़ता है। मैंने भी कहा कि आपने ठीक किया है, आपका मेमोयर लोग पढ़ेंगे। और सचमुच प्रकाश सिंह जी ने का जो मेमोयर है, मैं तो अभी उसको हमने खरीदवाया, हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेमोयर से आपको जो जानकारी मिलती है वह दूसरे किसी सोर्स से नहीं मिल सकती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बात कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर पी.एन. धर इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और 6 साल तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, 1971 से 77 तक। मुरारजी भाई को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर उनको नमस्ते कर लिया। अब प्रकाश सिंह जी ने
मैंने डीजीपी होने के बहुत वर्षों बाद इन 2-3 वर्षों में इन्होंने मेमोयर लिखा है। उसी तरह से प्रोफेसर पी.एन. धर को लोग आग्रह करते थे कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए या मेमोयर लिखिए। तो उन्होंने जो मेमोयर लिखा वो 2004 में छप करके आया। यानी 77 में कोई व्यक्ति सर्विस से अलग होता है, परंतु उनको कोई जल्दीबाजी नहीं है। और उन्होंने जो मेमोयर लिखा है वो उस मेमोयर में आप 1971 से लेकर 1977 की जो भारतीय राजनीति है उसके वो तथ्य आप जान सकेंगे जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मैं तो विद्यार्थी हूँ राजनीति के घटनाओं का, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ जैसे कैसे जेपी गिरफ्तार किए गए और जेपी की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी का फैसला कहना चाहिए कैसे हुआ, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रोफेसर पी.एन. धर की किताब में इसका वर्णन है कि रामलीला मैदान में जब जेपी का भाषण समाप्त हुआ तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग दौड़ते हुए प्रधानमंत्री निवास में पहुंचते हैं और जेपी का भाषण इंदिरा गांधी के सामने रख दिया जाता है। वो स्वयं पहले सुनती हैं और उसके बाद उनके लघु भगु और सलाहकार सुनते हैं। कई बार जेपी का भाषण सुना गया और उसमें से उस भाषण से वो इमरजेंसी लगाने का औचित्य खोजा गया था, नहीं मैं कह रहा हूँ खोजा गया। इस तरह की तमाम सैकड़ों घटनाएं, और उसी किताब में दो ऐसे तथ्य मिलते हैं जो सचमुच उसको या तो छिपाया जाता है या उस पर कुछ और इतिहास की दूसरी कहानी उस पर थोप दी जाती है। जेपी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा जब 21 जुलाई 1975 को लोकसभा शुरू हुई इमरजेंसी के दौरान, और उसमें जब इमरजेंसी के कारणों की उस समय की सरकार यानी इंदिरा गांधी की सरकार ने घोषणा की तो उसके जवाब में जेपी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। और इमरजेंसी के दौरान जेपी ने इंदिरा गांधी को 3 पत्र लिखे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेमोयर का महत्व क्या है। पी.एन. धर के मेमोयर से जो बातें हम जान सकेंगे, उसी तरह से प्रकाश सिंह जी का जो मेमोयर आया है जिस पर चर्चा भी यहाँ होगी, उससे ये आप जान सकेंगे कि इन्होंने क्या क्या झेला और इनके कारण दूसरे लोगों ने क्या क्या झेला, कहाँ इन्होंने चुनौती दी और कहाँ ऐसे सवाल खड़े किए कि उस समय की सरकारें, उस समय के मुख्यमंत्री या उस समय के दूसरे बड़े लोग के माथे पर पसीना आया, और इसलिए ही प्रकाश सिंह को लोग याद भी करते हैं। उसी तरह से चौथी पुस्तक है कॉल ऑफ द जंगल, लाइफ ऑफ एन IFS अफसर डॉक्टर रुचि सिंह जी। इन 4 पुस्तकों पर आज चर्चा होगी और कल फिर इसी क्रम में दूसरी 6 पुस्तकें हैं जिन पर चर्चा होगी। चर्चा निर्धारित है। उनमें एक पुस्तक का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, द लास्ट हीरो ऑफ बनारस, जिस पर कल चर्चा होगी। द लास्ट हीरो ऑफ बनारस सचमुच ये माटी के इस आयोजन की वो सब ऐसी पुस्तक है जिसकी चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बनारस के इतिहास में इस पुस्तक से 3 नई बातें जुड़ने जा रही हैं। और ये पुस्तक H.A. कुरैशी जैसा फारसी का बड़ा विद्वान अगर इस पुस्तक को हाथ न लगाता तो ये पुस्तक नहीं आ सकती थी।
और H.A. कुरैशी ने ओरिजिनल सोर्सेस से, यानी फारसी में जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं उसको खोज करके उस व्यक्ति को इतिहास के गर्त से बाहर निकाला है, जिसका नाम था जगत सिंह। बनारस में जगत सिंह के नाम से जगतगंज मोहल्ला भी है, लेकिन उस जगत सिंह को कौन जानता था। इस पुस्तक से 1799 में जगत सिंह उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और वो लड़ाई लंबी चलती है, महीनों चलती है। क्या हम इस बात को जानते हैं? क्या हम इस बात को जानते हैं कि 1857 से पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहते हैं, वह दूसरा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। दरअसल पहला स्वतंत्रता संग्राम तो बनारस में 1799 में लड़ा गया, और उसकी अगुवाई जगत सिंह कर रहे थे। ये एक नया तथ्य बनारस के इतिहास में जुड़ने जा रहा है इस पुस्तक से। दूसरा जो नया तथ्य जुड़ने जा रहा है वो ये कि सारनाथ की खोज बकिंघम ने नहीं की थी। आज भी सिकंदरा रोड के पास, मैं ये अमिताभ कांत जी का भी ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं वे इस तथ्य को नोट करें और दरअसल ASI के रिकॉर्ड को सुधरवाएं। आज आप जब सिकंदरा रोड के पर जो नया महल सा बना हुआ है ASI का दफ्तर, उसमें DG के कमरे के सामने एक बड़ा पत्थर लगा, और उस पत्थर के सबसे ऊपर जो नाम है ASI के सबसे पहले संस्थापक DG का, वो बकिंघम है। ASI को बनाया उसने, ये बात ठीक है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन की उसमें रुचि थी। लेकिन कनिंघम वो व्यक्ति नहीं है जिसने कि सारनाथ को खोजा हो। और आज विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, इतिहास की किताबों में ये बात है, ASI के रिकॉर्ड में ये बात है कि कनिंघम ने सारनाथ की खोज की। इस किताब से दूसरा तथ्य उजागर होता है कि नहीं, सारनाथ की खोज तो कनिंघम ने नहीं, जगत सिंह ने किया। और तीसरी बात कि आपने पढ़ा होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट को पराजय के बाद अफ्रीका के एक द्वीप सेंट हेलेना द्वीप भेजा गया था। उसी तरह से यानी जगत सिंह को अंग्रेजों ने उतना खूंखार माना या उतना भयानक माना जितना उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को माना था। और जगत सिंह को भी सेंट हेलेना द्वीप भेजा जा रहा था। ये बात अलग है कि जगत सिंह चतुर आदमी थे, तो गंगा सागर में उन्होंने सागर मुक्ति ले ली। तो मैं इस पुस्तक का महत्व बताने के लिए इतनी बात आपके सामने मैंने निवेदन किया। मैंने लगता है कि मैंने समय थोड़ा ज़्यादा लिया है। मैं ये कहूँगा कि ये पाठक समागम माटी की टीम का ये बहुत सराहनीय प्रयास है, और इस प्रयास में आप सब जुड़े हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Thank you for your continued contribution and dedication to Marty sir. We now reach the end of our inaugural session, and I, on behalf of Marty and IGNCA, extend our deepest gratitude to all our esteemed guests. Thank you for choosing to spend your time with us this evening. Your words have inspired us, and I would also like to thank our dear audience, media persons, Marty's trustees, and members. Thank you, everyone.